हाँ आप okay. So let's understand now the most important part. Another very important. So we understood interest rate. See, आज हमने क्या करा? Lag indicators, lead indicators. Then we did interest rate scenario. Then we did the forex exchange rate. Good. Now the third one is the deficit. अब government जो है they make their budgets every year. Okay. And government is having a deficit. गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी है. आई एम गोइंग टू शो यू एन एक्सेल शीट. ओके, बड़े अच्छी तरह दिखाऊंगा उसको आपको. मैंने शेयर भी कर दिया, आप उसको खोल के देख सकते हैं. सो गवर्नमेंट इज हैविंग इनकम. इनकम कहां से आती है गवर्नमेंट के पास? बिकॉज ऑफ टैक्सेस. और दे हैव लाइक रेलवेज और सम पब्लिक सेक्टर कंपनीज which are declaring dividends, like IOC, HPC, they are all government owned companies. So if they earn, so that money, the earning goes to the government. Okay. So government is earning from two sources. One is because they are taxing the people of India, either GST or import duty or other kind of levies. And second is they are earning because they do some business also. They have certain organizations which are owned by the government. Okay, more than, either they own 100% of those organizations, like Indian Railways, Indian Post and Telegraph, or maybe any other company which they're having a good stake, which are listed companies like IOC, BPC, and many companies. Okay, public sector companies जिनको बोलते हैं. So they make money from there, and then their expenditures. Expenditure क्या है? एजुकेशन पे है, डिफेंस पे है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिंग है, ब्रिजेस बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, कई तरह के खर्चे हैं गवर्नमेंट के. ओके, सो गवर्नमेंट हैज अ डेफिसिट. वट एवर गवर्नमेंट रेवेन्यू इज, एंड वी लुक एट द गवर्नमेंट एक्सपेंस, देयर इज अ गैप. एंड देयर इज ऑलवेज एन एडवर्स गैप. इनकम कम है और खर्चे ज्यादा है गवर्नमेंट के. ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसी हालत है. सो व्हाट द गवर्नमेंट डज? गवर्नमेंट बोरोज मनी. ऐसे गवर्नमेंट जो है, दे बोरोज मनी. एंड द डेफिसिट टुडे, आई एम नॉट सेइंग द एग्जैक्ट नंबर, द नंबर इज अराउंड 6 लाख करोड़. 6 लाख करोड़ का डेफिसिट है इंडिया का. तो गवर्नमेंट क्या करती है? वो पैसा बोरो करती है. तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट बॉन्ड इश्यू करती है. जो हम बॉन्ड की बात कर रहे थे, गवर्नमेंट इश्यूज बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ आरबीआई. Every Wednesday, the RBI auctions these bonds. And who are the buyers? Mostly the buyers are the banks of India. जैसे State Bank of India, ICICI Bank, HDFC Bank, all the banks have to, invest some money in government bonds. Okay? Because the banks can't lend all the money. Whatever the money, like we have given deposit to the bank. So banks are not going to spend all the money, not going to lend all the money as a loan. They have to keep some money in government securities. That's a rule of the RBI. There is a liquidity reserve ratio, SLR ratio, like 22%, 15%. उतना पैसा government को की securities में these banks have to invest. So when the government has to borrow, they find that the Indian banks are ready with so much of cash. They suck that money from the banks, and that helps the government to. And government gives them, a rate of interest 7%, 8%, जो भी कूपन रेट चल रहा है वो देती है गवर्नमेंट उनको, बैंक्स को. और गवर्नमेंट का भी काम हो जाता है और बैंक का भी काम हो जाता है. इज दैट ओके? और उसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इंडियन पीपल, म्यूचुअल फंड्स, दे आर बाइंग दोज बॉन्ड्स. एंड वी आर एक्चुअली बाइंग द म्यूचुअल फंड विच आर बाइंग द गवर्नमेंट बॉन्ड्स. We also invest our money. We can buy, stocks. We can buy, equity mutual funds. We buy fixed income securities mutual fund, low duration, high duration. वो पैसा कहाँ लगा हुआ है? वो म्यूचुअल फंड ने गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदे हुए, या तो कॉर्पोरेट के बॉन्ड खरीदे या गवर्नमेंट के बॉन्ड खरीदे हुए. सो गवर्नमेंट हैज इनफ रिसोर्सेज फ्रॉम विच दे कैन टेक द मनी. नाउ व्हेनेवर द बजट इज अनाउंस्ड, सो आपने देखा होगा कि आपके जब बजट अनाउंस होता है, करीब 12:30 बजे बजट खत्म होता है, अराउंड 1 बजे निर्मला सीतारमण बजट पेश कर रही है आजकल. तो आपने देखा होगा कि उसके बाद दो तीन चार छह आदमी इंडस्ट्री के आ जाते हैं जो बजट रेट को रेट करते हैं. लाइक पवन मुंजाल विल बी देयर, सुमित मुंजाल विल बी देयर, रतन टाटा में भी देयर. रतन टाटा तो नहीं आते, दूसरे लोग आ जाते हैं. दे रेट द बजट, एंड पवन मुंजाल सेज 9 out of 10 टू दिस बजट. हम कहते हैं 9 out of 10 क्यों रेट करा, कैसे रेट करा? हाउ दे रेट? they look at the last number of Nirmala Sitharaman. What was the fiscal deficit and what is the borrowing program of government? गवर्नमेंट कितना, अगर सपोज आप बोरिंग ज्यादा करोगे, सपोज आपकी इनकम 100 रुपए है और आपका खर्चे 120 रुपए है, इज इट अ गुड सिचुएशन फॉर यू और बैड सिचुएशन? बैड. अगर आपके खर्चे 100 हैं और आपकी इनकम 100 है और आपके खर्चे 105 ही हैं,
फ्रॉम लास्ट ईयर आपने 120 रुपए बोरो 20 रुपए बोरो एक्स्ट्रा बोरो कर रहे थे, इस बार तो सिर्फ 5 रुपए एक्स्ट्रा बोरो कर रहे हैं, तो आपकी सिचुएशन अच्छी है. तो दे लुक एट द फिजिकल बोरोइंग प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट नेक्स्ट ईयर. Then they say the borrowing is to the extent of 5% of GDP. Last year it was 6%, today it is 5%. So that means India has done well. India's borrowing program, now borrowing in absolute term तो बढ़ जाती है, but with respect to percentage of GDP, it should be checked. The norm is around close to about 5%, for example. I don't know the norm exactly now, but should around 5%. अगर 6% borrow कर लिया, तो Sensex is going to tank. And all these people like Munjals and other people will saying the score is only 5 out of 10. Right? If they find the government has managed their finances well and government is going to borrow less in the next year, they give a thumbs up to the budget. 9 out of 10, 8 out of 10, 10 out of 10. Fine. So ये लास्ट के जो होता है, जो हम जब तक टीवी बंद करके बाहर निकलाते हैं, ये लोग वेट करते हैं कि देखेंगे कि कितना बोरो करेगी, फिजिकल डेफिसिट कितना है. अगर फिजिकल डेफिसिट 6% हो गया तो बजट इज बैड. लेकिन इस बार था कि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट था 6% से ऊपर था, बट स्टिल द बजट वाज गिवन 9 out of 10. व्हाई? बिकॉज ऑफ द कोविड. They have said that Indian government has to borrow more because India needs more money to develop for the GDP growth. We have to borrow more because India has to, because there will be a demand shortfall. The government is going to actually create, invest a lot of money into infrastructure, this thing projects, which is going to boost the employment and boost the economy of the country. So even more than 6% kind of a GDP was hailed by the industry captains. Normally, the industry people will say the deficit should be as low as possible. Is that okay? So now I'm just going to show that. So this is, a very old data. Budget estimate for 2012-13, because this I could pull out in this format. So this also I'll convert into the latest one, so that, and the budget format has also changed a little bit. First, revenue receipt. How much? This is crores. 771 crore is the tax revenue. Of course, ये figure तो कहीं ज़्यादा बढ़ गई है. Non-tax revenue 164.6. This is from the departments, Department of Post, Department of Railways, all the companies, which the government is running, and those companies are declaring dividend. It is going to the government pocket. So total revenue कितना था? 935 करोड़. कब का है ये? 2012-13 का है. Little old ratio, okay? Fine. ये figure आ गई. Is that okay? Now the government is going to get some money. Capital receipts हो गया, revenue receipts. ये capital, recovery of loans. Suppose the government has given some loan to someone, it is getting from whom to they are given, we don't know, but they are going to get 11.6 crore as capital recovery. आपने किसी को लोन दिया, देशराज ने रामवीर खत्ती को पैसा दिया था, रामवीर ने वापस कर दिया, तो ये पैसा यहाँ आ गया. इज दैट ओके? फाइन. फिर अदर रिसीट्स को और भी 30 करोड़ की बोरोइंग्स. अब ये फिगर जो है, ये फिगर एक्सेल ड्रिवन बनाई है मैंने. ये एक्चुअल बोरोइंग थी उस टाइम की. कितनी? 513.60. ये बोरोइंग गवर्नमेंट ने कहा इतना. हम जब निर्मला सीतारमण उठी, उसने बोला वी आर गोइंग टू बोरो 513.6 करोड़ रुपीज नेक्स्ट ईयर. नाउ हाउ दिस फिगर हैज कम, विल अंडरस्टैंड. अभी पता चलेगा. ये फिगर नीचे क्या आ रही है, जो डेफिसिट है यहां पर, ये देखो, ये फिगर, ये फिजिकल डेफिसिट है, ये सरप्लस नहीं है, डेफिसिट है. कितना है? 513. तो ये फिगर जो है यहां पर लग गई. ये फिगर अपने आप चली गई वहां से उठ के, तो बजट बैलेंस हो गया. जैसे मैं इसको बोलता हूं, सपोज इस फिगर को मैं हजार करोड़ कर दूं, तो क्या होगा? ये फिगर कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी? कम हो जाएगी भाई. तो क्यों? इनकम बढ़ गई गवर्नमेंट की. तो अब चाहिए कितना? सिर्फ 284 करोड़. अब मैं पूरी शीट दिखा रहा हूं. ये वापस चलते हैं. ये तो आइए फिगर नीचे से, जो बैलेंस करने के लिए बजट को. तो ये गवर्नमेंट का जो था टोटल रेवेन्यू हो गया, यानी गवर्नमेंट की रेवेन्यू जो होगी वो इतनी है. ठीक है. तो और ओके, ये फिगर क्या है? 2AB अभी देखते हैं. हाँ, फाइन. अब हम चलते हैं यहां पर. टोटल रिसीट्स हो गई. ये पहले क्या था? हाँ, ये आ गया. अच्छा, अब नॉन प्लान अब आ गया एक्सपेंडिचर. फाइन. अच्छा, एक सेकेंड. ये 472 करोड़ ये माइनस हो रहा है. फाइन. ये माइनस हो रहा है. कहां आ रहा है? 2A, 2C. 2A ऊपर ही है. ये इधर का, हाँ, इधर का. तो ये हमने जो था 2ABC ये निकाल दिया है ना. ये 11 करोड़ तो मिला था, 30 करोड़ मिला था. ये 513 करोड़ बोरो करा. तो इसका नेट
जो रिसीट है कैपिटल अकाउंट में इतनी है, तो यानी कि हमारा जो टोटल रिसीट थी वो इतनी थी। फाइन, 1 + 2। ओके, ये समझ आ गया? अच्छा, अब हम आते हैं नीचे। ये हमारा खर्चा है। जो खर्चे को हम क्या करते थे पहले, प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अभी ये नॉन प्लान खत्म हो गया, अब सारा एक्सपेंडिचर में चला गया। तो वी डोंट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉन प्लान, व्हाट इज प्लान। तो ऑन रेवेन्यू अकाउंट 865 करोड़ का हमारा खर्चा है। ओके, ऑन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट तो 319 करोड़ तो हम ब्याज दे रहे हैं। जो हमने बोरो करा था लोगों से, उसका ब्याज भी तो देंगे, वो जा रहा है। 104 करोड़ कैपिटल अकाउंट में कुछ है। फिर प्लान एक्सपेंडिचर 420 करोड़ रेवेन्यू अकाउंट में है और 100 करोड़ कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो टोटल खर्चा गवर्नमेंट का खर्चा क्या है? कुछ रेवेन्यू खर्चा है, कुछ कैपिटल खर्चा। जैसे हमने कोई मशीन खरीदी तो हमारा कैपिटल है, तो समझ लो गवर्नमेंट का भी कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ओके, अब आ गया टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब आ गया यहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें हम क्या करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, इसको हम देखते हैं यहां पर फॉर्मूला से, ट्रेस फॉर्मूला। तो इसमें हम सिर्फ रेवेन्यू वाले लेते हैं, ये रेवेन्यू खर्चा और ये रेवेन्यू खर्चा दोनों। तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है? बाकी सब तो कैपिटल ही है। ओके, इसको हटा दिया। फाइन, फिर हम आते हैं क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये हो गया। अब आते हैं डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। ये कैसे निकला? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम। ये रेवेन्यू इनकम थी हमारी, ये रेवेन्यू इनकम थी। फाइन, ये सब रेवेन्यू इनकम थी। 935 माइनस ये खर्चा हो गया हमारा, ये होगी। ठीक है, इसको हटा दो। अब आते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट, विच इज योर फिजिकल डेफिसिट। तो हमारे एक तो रेवेन्यू डेफिसिट है, यानी हमारा रेवेन्यू जो गवर्नमेंट कमा रही है और रेवेन्यू खर्चा हो रहा है, तो हमारा रेवेन्यू खर्चा ही ज्यादा है रेवेन्यू इनकम से। अब आता है हमारा फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट वो क्या होता है? वो कितना है? 513। तो इसमें टोटल खर्चा कैपिटल प्लस रेवेन्यू, मतलब कैपिटल प्लस रेवेन्यू, रेवेन्यू और कैपिटल प्लस अपने सॉरी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर बोथ, रेवेन्यू एंड कैपिटल अकाउंट जोड़ के। समझ के बाद अब हम इसको देखते हैं। ये हमारा टोटल वो है, रेवेन्यू है। ये हमारी जो है ये खर्चे हैं, ये दोनों के दोनों कैपिटल खर्चे हैं, सॉरी रिसीट है। ठीक है, और फिर हमारे ये जो है हमारा टोटल खर्चा है। ओके, और ये भी हमारा खर्चा है। इसमें रेवेन्यू और कैपिटल दोनों जुड़ गए, इसमें भी रेवेन्यू और कैपिटल जुड़ गए। तो अब हमारा जो खर्चा आ गया ये, यानी पहले हम देखा हमने रेवेन्यू अकाउंट में कितना हमारा गैप है। अब कंपनी का सपोज मान लो कि कंपनी, एक सोचो आप, आपकी हीरो मोटोकॉप है, उसका प्रॉफिट है 500 करोड़। ओके, फाइन, या सपोज कोई रेवेन्यू माइनस और एक्सपेंस मान के 500 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, यानी रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर 500 करोड़ का प्रॉफिट। अब 500 करोड़ के बाद वो 600 करोड़ रुपए की नई मशीन खरीदे हैं, तो क्या कितना कितना डेफिसिट हो गया? 100 करोड़ का। तो 100 करोड़ क्या करेगी? सब बैंक से लोन लेगी। ठीक है, फाइन। तो अब ये जो फिजिकल लॉस आ गया 513, दैट मीन्स गवर्नमेंट इज गोइंग टू बोरो दिस मनी हेयर, ये यहां आ गई, तो मैच हो गया बजट। फाइन, मैंने आपको बताया हीरो मोटोकॉप का टोटल खर्चा माइनस टोटल रेवेन्यू खर्चा माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर प्रॉफिट था 500 करोड़। तो किसका होगा? हीरो मोटोकॉप हैज अर्न 500 करोड़। अब उन्होंने सोचा थोड़ा एक्सपैंड करें, हमें नई मशीन खरीदनी है, नई फैक्ट्री लगानी है। सपोज उनका बजट है 600 करोड़, तो इसका मतलब 500 करोड़ ही उनके पास पड़ा होगा, तो जो 100 करोड़ रुपए वो बोरो करेंगे, तो वो यहाँ आ ये बैलेंसिंग में सुपर का बजट मिलता है। समझ आई बात आपको? तो ये आप एक्सेल सीट देखो, आपको समझ आएगी। अच्छा, ओके। अच्छा, अब हम इसको क्या करते हैं, यहां हमने रिमूव कर दिया। अब यहां चलते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये कितनी आ रही है? 513। ये बोरोइंग है। ये कितना आ रहा है? परसेंटेज ऑफ जीडीपी कितना है? 5.1। ये जीडीपी है। ओके, फाइन। नाउ सपोज फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जीडीपी हमारी जो फिगर है ये थोड़ी अंडर एस्टिमेटेड है। हमारी जीडीपी 100 करोड़ से ज्यादा बढ़ जाएगी, तो क्या होगा? ये फिगर नीचे होगी। फाइन, अगर हमारी जीडीपी बढ़ती है तो हमारी डेफिसिट कम हो जाएगा, यानी जैसे जीडीपी बढ़ेगी डेफिसिट कम होगा।
इज दैट ओके? तो ये अभी 5% चल रही है। अगर मैं कहूं कि भाई जीडीपी जो है वो 10,000, सॉरी, ये इससे कैलकुलेट है 5%, ये जो 5% है यहां से देखो, हाँ इसी से कैलकुलेट है। सपोज मैं इस फिगर को 11,000 कर देता हूं, तो ये फिगर कितनी होती है? 4.7। तो जैसे जीडीपी बढ़ेगी हमारा फिस्कल डेफिसिट पर परसेंटेज कम हो जाएगा। अगर हमारी जीडीपी जो है कोविड टाइम कम होगी, ये 9,000 करोड़ रह गई थी, तो ये 5.7 हो गया। सो द फाइनेंस मिनिस्टर हैज टू मेक श्योर दैट ये क्रॉस ना हो जाए 6% से। अगर अपना टारगेट रखा हो 6% से ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो वो जीडीपी फिगर को रखते हुए अपनी बोरिंग प्रोग्राम्स को बनाते हैं, कैसा करना पड़ेगा।